Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So, class 11th, it is important for you to know about it in chapter 3, which is basically plant kingdom. Here, you have to read some specific points in plant kingdom. It will be algae, bryophyta, pteridophyta, and gymnosperm. Angiosperm, it will be not included in your class 11 syllabus. So, where in chapter 3 we have complete algae, bryophyta. Now today's topic is pteridophyta. Plant kingdom is divided in different classes: algae, bryophyta, and third one is pteridophyta. In this chapter you have read classification of algae, classification of bryophyta, where you have read moss, mosses, and liverwort and their difference also. So now third point is 3.3 pteridophyta. Pteridophyta includes horsetail and fern. कौन सा इसमें इंक्लूड है? फर्न. Now it is includes fern or horsetail. Pteridophyta are used for medical purpose and soil binder. It is economic importance. When questions come, write the economic importance. So you have to write importance of that particular group, like pteridophyta. Where pteridophyta is used? Pteridophyta are used for medicinal purpose and soil binder. Soil binder का मतलब समझते हो? जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा. मतलब जिस जगह पे फंड लगते हैं वहाँ पे सॉइल स्ट्रांग हो जाती है और ईजली इरोजन उसका नहीं होता है. दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन ऑन एज अ ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म पे भी ये ग्रो होता है. इवोल्यूशनरी ये जो pteridophyta बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. इसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के फॉर्म पर इंक्लूड किया गया है. क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टू पॉसेस. क्यों टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है? क्योंकि ये ज़्यादातर ना ह्यूमिड एरिया पर है, पूरे लैंड एरिया पर है. ठीक है. पॉसेस वेस्कुलर टिश्यूज़. और ये फर्स्ट एक ऐसा प्लांट है जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ अवेलेबल हैं. अभी तक आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा है, एल्गी पढ़ा, उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है. अब क्वेश्चन से पुटअप होते हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? इट इज़ थ्रू देयर प्लांट सरफेस. प्लांट सरफेस के थ्रू जो थैलस होता है डायरेक्टली उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. लेकिन जब जाइलम एंड फ्लोएम के स्टार्टिंग हो गई है तो नाउ ट्रांसपोर्टेशंस विल बी कैरिड बाय जाइलम एंड फ्लोएम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव क्लियर हेयर what is the need of xylem and phloem. You shall study more about tissue chapter in chapter 6. Pteridophytes are found in cool, damp, shady places through some more flourish well in sandy soil conditions. Quite right, student. Now you may recall that it is bryophyte are dominating phase of the life cycle is gametophytic. There are difference between bryophyta and pteridophyta. Bryophyta में dominating stage क्या है? Gametophytic plant body. Gametophytic. ठीक है. Gametophytic plant body. But in pteridophyta the main plant body is sporophyte. ठीक है. ये किस में है? ब्रायो में. और स्पोरोफिटिक जनरेशन किस में है? स्पोरोफिटिक ये है pteridophytes में. pteridophytes. Clear student? So these are the basic difference. Second difference क्या है ब्रायोफाइटा में? No vascular tissues are present, but here vascular tissues are well developed. Third, it is first terrestrial plants और ब्रायोफाइट को क्या कहा है? Amphibians plants. So these are some differences. When you will read, you just make their differences and note in their copy. Clear student? आपको यही नोटिस करना है pteridophyte bryophyta में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट कंपैरिजन्स करते हुए. However, in pteridophyta the stem and leaves, pteridophyta में प्लांट बॉडी
किस तरीके से वो है, ट्रू रूट, इट इज़ डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जबकि ब्रायोफाइटा में स्टेम, लीव्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर था, बट इट इज़ नॉट ट्रू रूट। तो दैट्स आ इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस कि टाइडोफाइट इवॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती जा रही है क्लासिफिकेशंस में, वैसे वैसे वो उसमें इवोल्यूशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? दैट्स अ रीज़न इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these organs possess well defined vascular tissues. The leaves is Pteridophyta, leaves जो है Pteridophyta की स्पेशल होती है। The leaves of Pteridophyta are small as in Slazinella और large in a fern। मतलब स्मॉल भी होती है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोफिल्स। जो स्मॉल लीव्स है इट इज कॉल्ड एज it is called as microphylls और जो लार्ज है इट इज लार्ज इज मैक्रोफिल्स। स्लैजिनेला और लार्ज इज मैक्रोफिल्स। सो here 2 points are there, microphylls and macrophylls. Macrophylls means large और micro means small और large का क्या हो जाएगा, macro, 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 micro MICRO. So these microphylls and macrophylls which is present in fern or Slazinella, the sporophytes bear sporangia and subtended by leaf-like appendages called sporophylls. जो इसको स्पोरोफाइट स्टेज है वो क्या कंटेन कर रही है, स्पोरोफिल्स। These sporophylls may form distinct compact structure. It is called as strobili. What is strobili and cones? If questions has come, what is strobili and cones? You will write strobili and cones are compact structure, ठीक है, which is from sporophylls, Aquestium or Slazinella. The sporangia produce spores by meiosis. Spores कैसे बन रहे हैं, spores formed by meiosis division. अब meiosis माइटोसिस को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। meiosis डिवीजन मतलब हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स नंबर। तो किससे बन रहे हैं, पहले स्पोर मदर सेल फॉर्म होगी, फिर से meiosis डिवीजन होगा, फिर वो स्पोर्स फॉर्म होंगे। फर्स्ट स्पोर मदर सेल इज फॉर्म which is diploid in nature, and after meiosis division it's form spores. The spores germinate to gives rise small multicellular inconspicuous plant's body which is gametophytic in stage, ठीक है। कैसा होगा ये, गैमेटोफिटिक होगा। क्लियर? फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट्स कैसे फॉर्म हो रहा है, गैमेटोफाइट्स आर फॉर्म बाय स्पोर्स, और स्पोर कैसे फॉर्म हो रहे हैं, बाय स्पोर मदर सेल ड्यू meiosis डिवीजन। क्लियर? तो गैमेटोफिटिक हुआ एंड गैमेटोफिटिक स्टेज इज कॉल्ड प्रोथैलस। थैलस किसमें है, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। थैलस इज स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा एल्गी का है थैलस स्ट्रक्चर, और ये एक एल्गी जैसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट्स अ रीजन इट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस, ठीक है। तो प्रोथैलस ऑलवेज गैमेटोफिटिक इन नेचर। प्रोथैलस कैसा है, हमेशा गैमेटोफिटिक स्टेज पर रहता है, गैमेटोफाइट। क्लियर स्टूडेंट? नाउ आई थिंक you have cleared this point. These gametophyte require cool, damp, shady places to grow. अब इसको रिक्वायरमेंट है shady place का, ठीक है। Because of these specific restrictions, requirement and need
for water for fertilization. अब गैमेटोफिटिक स्टेज है मीन्स गैमेट्स फॉर्म होंगे. गैमेटोफिटिक स्टेज का क्लियर मीनिंग है कि गैमेटोफाइट्स फॉर्म होंगे और गैमेटोफाइट्स फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड है. तो इसलिए गैमेटोफाइट स्टेज हमेशा शेडी प्लेस पर होता है क्योंकि अब इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है. तो ये द स्प्रेड ऑफ लिविंग थाइडोफाइट इज limited and restricted to narrow geographical area. The gametophyte bear male and female sex organ. Gametophyte में ही मेल और फीमेल होगा सेक्स ऑर्गन. It is called antheridia or archegonia. Same name in Bryophyta. Antheridia is for male sex organ, male gametes. Archegonia is from female organs respectively. Now water is required for transfer of anthrozoids. अब antheridia क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Anthrozoids. Antheridia is a organ where anthrozoids produce. Anthrozoid प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. और ये एंथ्रोजोइड्स क्या कर रहे हैं? ये इट इज एंथ्रोजोइड्स इज मेल गैमेट. Now right student, these male gamete transfer and reach the mouth of archegonia in presence or mode by किसके थ्रू पहुँच रहे हैं? Mode by water. That's the reason water are required. Fusion of male gametes with egg present in the archegonia. Archegonia आप just imagine करो, यहाँ ये एंथ्रोजोइड्स का आर्किगोनिया के माउथ में पहुँचना है. इट इज़ ओल्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन. ये पॉलिनेशन ही है जो आगे जाके एक ट्रू पॉलिनेशन में चेंज हो जाएगा. अब आर्किगोनिया पे गया. आर्किगोनिया पे क्या है? इधर आर्किगोनिया, इधर एग इज प्रेजेंट. आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एग. वेयर एंथ्रोजोइड्स और एग विच इज प्रेजेंट इन आर्किगोनिया, इट्स फ्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट कैसे फॉर्म हो रहा है? फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड्स with egg cell. Zygote is developed in sporophytic stage, which is dominating phase of pteridophyte. इसमें डोमिनेटिंग फेज क्या है? टाइडोफाइट की स्पोरोफिटिक फेज है. और ये किससे डेवलप हो रही है? जाइगोट से. गैमेटोफिटिक स्टेज कैसे डेवलप हो रही है? स्पोर्स से. स्पोर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं? स्पोर्स आर फॉर्म बाय स्पोर मदर सेल, ठीक है. और स्पोर्स इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट. तो गैमेटोफाइट से किसकी स्टेज शुरू हो गई? हैप्लॉन्टिक स्टेज शुरू हो गई. गैमेटोफाइट्स ने गैमेट्स प्रोड्यूस करे, गैमेट्स से फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना एंड 2x स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज का स्टार्ट हो गया. और स्पोरोफिटिक स्टेज इज अ मेन डोमिनेटिंग स्टेज ऑफ pteridophyte. Now here student you have clear all point. What is the gametophytic stage? What is the sporophytic stage? The majority of pteridophytes, all the spores are similar kind. These are called as homospores. समझ में आया? टाइडोफाइट्स में सभी स्पोर्स एक जैसे ही हैं. ये स्पोर्स कैसे कहलाते हैं? इट इज़ होमोस्पोरस. जनरल लाइक स्लेजिनेला और साल्विनिया विच प्रोड्यूस 2 kinds ऑफ स्पोर. क्लियर? ज़्यादातर टाइडोफाइट्स के जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं वो होमोस्पोरस होते हैं. बट देयर आर 2 एग्जाम्पल्स गिवन देयर, स्लेजिनेला और साल्विनिया. Slazinella and Salvinia, it's produce 2 type of spores. It is called as heterosporous. How to define heterosporous? Heterosporous when 2 kinds of spores are produced
by microphylls or by macrophylls is called heterosporous. ठीक है, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं टाइडोफाइट्स में दे आर होमोस्पोरस, बट सम प्लांट्स एक्सेप्शनली सम प्लांट्स आर heterosporous. The megaspores, microspores germinate and gives rise female or female gametophyte, and microspores germinate and gives male gametophyte respectively. ठीक है, clear student? The female gametophyte in these plants are retained on the parent's sporophyte for variable period. और ये गैमेटोफाइट स्टेज बहुत समय तक स्पोरोफिटिक स्टेज पर डिपेंड करती है. ठीक है, इसका टाइम पीरियड वेरिएबल है. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो. अब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म हुए. मेल और फीमेल गैमेट्स पॉलिनेशन प्रोसेस हुई, मीन्स ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स on the mouth of Archegonia. This is pollination. After pollination, the zygote are formed. These zygote develop into young embryo and it takes within the female gametophyte. ये एम्ब्रियो एक से जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और एम्ब्रियो से एक स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, फॉर्म होती है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट से के अंदर से ही स्टार्ट हो रही है. दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट. और ये शो कर रहा है कि जो सीड्स प्लांट्स हैं ये आगे इन सीड्स प्लांट्स के एंसिस्टर्स हैं. तो विच फीचर शो टाइडोफाइट इज़ एंसिस्टर्स ऑफ सीड प्लांट्स. यदि इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आपको देना पड़ेगा. द पेरेंटल स्पोरोफाइट्स the gametophyte is produce zygote after the fusion, and these zygote develop into young embryo within in female gametophyte, and this event show precursor of the seed habit, which is considered as a important step in evolution. So आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कुछ भी लाइन, एक भी लाइन आपको स्लिप नहीं करनी है NCERT की. I am repeating this instructions again and again because it is very important. If you will lacking something, you will lapse something, you will escape some points, then you will lacking some important feature. ठीक है, that is very important for future और फर्दर एग्ज़ाम्स जो आप लोगों को आगे एग्ज़ाम्स देना उसके लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सीड हैबिट्स को शो कर रहा है. नाउ नेक्स्ट टाइडोफाइट क्लासिफिकेशन. द टाइडोफाइट क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली इट इज़ इन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास. टाइडोफाइट को कितनी क्लास में डिवाइड किया है? 4 क्लास. फर्स्ट इज़ साइलोप्सिडा. पी साइलेंट है. साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सिफेनोप्सिडा, and fourth one is Pteroptopsida और Dipteris. ठीक है, Pteroptopsida. Examples: Dipteris adentum, or Pteris. So there are, you have to write their classifications, Pteridophyta classification and their name only. Now next or final is a gymnosperm. Gymnosperms means naked seeds. क्या है ये? Naked seeds. Naked seeds are plant in which ovules are not enclosed by an ovary ball. इसमें naked ovules का मतलब ये है
कि ओवरी बॉल के अंदर नहीं होते हैं. इट रिमेन्स एक्सपोज्ड. कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एक्सपोज मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपने रीड किया है कि फिर पूरा डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है. सीड का फॉर्मेशन, ठीक है, सीड कोट्स का फॉर्मेशन और एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन. बट यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? ओ एक सीड के अंदर, उसके अंदर नहीं हो रहा, ओव्यूल के अंदर नहीं हो रहा है. द सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशंस आर नॉट कवर्ड. सीड इसके कवर्ड नहीं होते हैं, दे आर नेकेड. दैट्स अ रीज़न इट इज़ जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री. इससे ट्रीज़ होते हैं ज़्यादातर मीडियम साइज टॉल ट्रीज, और कुछ श्रब्स के उस पर भी है, ठीक है. वन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज बेसिकली एग्जाम्पल्स दिया हुआ. वन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज जायंट रेडवुड और सिक्यूआ रेडवुड ट्री, और द नेम ऑफ रेडवुड ट्री इज सिक्यूआ. On the gymnosperms, the examples redwood tree. एक और स्पेशल फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का. वो क्या है फीचर? दिस इज बेसिकली it is tallest tree species. The root is generally tap root system. There are two type of root system. You have already read tap root system and adventitious root. So this is tap root, where roots of the gymnosperms associate with fungal association and form a mycorrhiza. तो यहाँ पर आपने दो याद करो, एक लाइकेंस है और एक माइकोराइजा है. लाइकेंस इट इज एसोसिएशन विद algae and fungi. Mycorrhiza is association with fungal with gymnosperms tree roots. पाइनस की रूट के साथ फंगल जो है एसोसिएशन हो जाता है एंड इट्स फॉर्म अ माइकोराइजा. पाइनस, सम अदर ट्रीज आर साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड साइकस एंड माइकोराइजा, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोराइड्स रूट्स. कोराइड्स रूट. एक और रूट आ रहा है इसमें, क्या है? राइट इट कोरेल राइट, ठीक है. स्पेलिंग इज लाइक दैट, CORALLOID. It is coralloid roots which is associated with nitrogen fixing bacteria. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होता है. दिस इज कॉल्ड एज कोरेलॉइड रूट्स. और ये कैसी रूट है? स्पेशली नॉट्स के शेप में होती है, ठीक है. तो दीज आर द specific feature about gymnosperms. In cycas, the pinnate leaves persistent for a. cycas की leaves कैसी होती है? pinnate leaves होती है. palmate and pinnate, there are two type of leaves, palmate leaves, pinnate leaves. तो ये कैसी है? pinnate leaves. It is well adapted with shade extreme of temperature. और ये pinnate shaped leaves का कारण ही ये humid area पर सर्वाइव कर जाता है, ठीक है. एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर और विंड पर ये लीव्स सर्वाइव कर जाती हैं. इन कोनिफर्स निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया. और निडल लाइक लीव्स होती हैं जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं. दे थिक क्यूटिकल एंड सकन स्टोमेटा. सकन स्टोमेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीरोफिटिक लीव्स. इसके थिक क्यूटिकल होता है और स्टोमेटा सकन होते हैं, तो वाटर लॉस रिड्यूस हो सकता है. सो दीज आर द सम एडॉप्टेशंस इन जिम्नोस्पर्म्स. क्योंकि इनके हैबिटेट डिफरेंट हो रहा है, हैबिटेट जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से इनको अडॉप्ट करना ही होगा. सो आई थिंक स्टूडेंट हेयर वी हैव फिनिश जिम्नोस्पर्म्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक द डिटेलिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. आफ्टर दैट वी विल take angiosperms. We have not take, we will not teach it because it is deleted portion. After that we will take alternation of generations, then this chapter will be finished. Okay student, thanks, have a nice day. Thank